Hello students, I am Pragati Galambe welcomes you all on my channel which is for bifocal banking. In this video, we are going to study the new topic that is garnish order. Okay, let's start. The meaning and the definition. Garnish order is an order given by court if the debtor fails to make the payment to the creditor. Okay, the main two persons, that means first is the creditor and the second is debtor. Debtor, the person who owes the money or who have obligation to pay the money. Okay, and the creditor, the person who receives the money. Okay, garnish order basically is an order given by court. Okay, court एक order देगा to the debtor's bank that if the debtor fails to make the payment, bank will pay, or bank that frees that account of the debtor and pay the amount to the creditor. Okay, clear? Now the definition. Garnish order issued under the order number 21, rule 46, the Code of Civil Procedure 1908. Okay, it is an order issued by court on the request of creditor to stop the account of debtor if debtor fails to make the payment to the creditor. Okay, now it is the order issued by court. Okay, this is the order which is issued by court on the request of creditor. Okay, this is very important. ये एक order है जो court issue करता है किसके request पे? Creditor के request पे. Okay, जिसको पैसा मिलने वाला है, who is going to receive the money. Okay, to stop the account. Okay, to stop or to freeze the account of the debtor. Okay, जो person pay करने वाला है but उसने pay नहीं किया. Okay, debtor is going to pay the money but he fails to make the payment. If the debtor fails to make the payment to the creditor, creditor क्या करेगा? Creditor कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा कि वो जो बैंक है वो बैंक को ऑर्डर करो टू स्टॉप दैट अकाउंट, टू स्टॉप द अकाउंट ऑफ डेटर और टू फ्रीज द अकाउंट ऑफ डेटर. ओके, नाउ एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, वो एग्जांपल से समझ में आएगा. द वन पर्सन दैट मीन्स मिस्टर राम and the second person that means Mr. Sameer. Okay, Mr. Ram is owes to pay 10,000. Okay, Mr. Ram को क्या करना है? 10,000 rupees pay करना है to Mr. Sameer. Okay, in that case Mr. Ram becomes an debtor and Mr. Sameer becomes a creditor. Okay, Mr. Ram को 10,000 rupees pay करने हैं but Mr. Ram fails to make the payment or Mr. Ram is unable to make the payment to Mr. Sameer. Okay, now Mr. Sameer क्या करेगा? Mr. Sameer will go to the court. Mr. Sameer कोर्ट के पास जाएगा और वो रिक्वेस्ट करेगा to order to Mr. Ram's bank. Mr. Ram का जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक को क्या करो? ऑर्डर दो to pay the money. Okay, राम नहीं पे कर रहा है तो कौन पे करेगा? On the behalf of राम कौन पे करेगा? उसकी बैंक पे करेगी. तो ऐसा ऑर्डर कौन बनाएगा? कोर्ट. ओके, मिस्टर समीर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा टू द ऑर्डर, ओके, टू इशू द गार्निश ऑर्डर. क्लियर? नाउ कोर्ट विल इशू वन ऑर्डर दैट इंक्लूड्स और दैट मेंशन फ्रीज द अकाउंट ऑफ द मिस्टर राम until the debtor, that means Mr. Ram, paid the amount to the creditor. ओके, कोर्ट ने ऑर्डर दिया बैंक को कि राम का जो अकाउंट है वो फ्रीज करो, टू स्टॉप करो फॉर द पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो अकाउंट स्टॉप किया जाएगा. उस अकाउंट्स में से 10,000 रुपीज का जो पेमेंट है या एनीथिंग अमाउंट जो है वो अमाउंट पे की जाएगी मिस्टर समीर को और इसके बाद सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगी, वो अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर? वो जो ऑर्डर है विच इज इशूड बाय कोर्ट, जो कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा राम के बैंक को, इज नोन एज अ गार्निशी ऑर्डर. ओके, ठीक है, क्लियर? Now there are three parties. The first party is judgment debtor. Okay, राम पे करने वाला है, so राम becomes an judgment debtor. किसको पे करेगा? मिस्टर समीर को, so मिस्टर समीर becomes an judgment creditor. And किसके ऊपर ऑर्डर निकाला जाएगा? कोर्ट ने ऑर्डर इश्यू किया, but on whom the court will serve the order? Bank. So bank becomes an garnishee. Clear? So the parties of garnish order is judgment debtor, a person that means debtor whose account freeze by bank.
ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। बैंक ने किसका अकाउंट फ्रीज किया? मिस्टर राम का। सो मिस्टर राम बिकम्स एन जजमेंट डेटर. Okay. Second is judgment creditor. The person, that means creditor, on whose request court issues the garnishee order. Okay. Mr. समीर ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को, प्लीज गिव माई मनी by issuing the order. Okay. So Mr. Sameer becomes an judgment creditor. Okay. And the last third party is garnishee. Garnishee always a bank. Okay. A bank on whom garnishee order is served. Okay. कोर्ट ने गार्निशी ऑर्डर इशू किया, बट किसके ऊपर? किसको सर्व हुआ गार्निशी ऑर्डर? बैंक को. सो बैंक बिकम्स एन गार्निशी. द बैंक ऑफ जजमेंट डेटर. ओके. जजमेंट डेटर की, दैट मीन्स मिस्टर राम की जो बैंक होगी उसी बैंक पे गार्निशी ऑर्डर इशू किया जाएगा. ओके. एंड दैट बैंक इज नोन एज अ गार्निशी. क्लियर? नेक्स्ट, the application of garnishee order to the account. garnishee order अप्लाई किया जाता है to the various account, but how? कैसे वो ऑर्डर अप्लाई किया जाएगा? तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे जॉइंट अकाउंट पे garnishee order कैसे अप्लाई किया जाएगा. ओके. देयर आर टू पर्सन्स, दैट इज मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम. they both have the joint account. ओके. मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम का क्या है? जॉइंट अकाउंट है. बट मिस्टर राम क्या है? ओज टू पे. मिस्टर राम को 10,000 रुपीज पे करने हैं. किसको? मिस्टर समीर. क्लियर? सो मिस्टर राम बिकम्स एन जजमेंट डेटर एंड मिस्टर समीर बिकम्स एन जजमेंट क्रेडिटर. ओके. दोनों का अकाउंट है, श्याम और राम का. उसमें से जो मिस्टर राम है उन्होंने क्या किया है? 10,000 रुपीज लिए है मिस्टर समीर से, और अभी वो उनका 10,000 रुपीज पे करने. ओके. इन केस मिस्टर राम अगर अनेबल है टू पे द रुपीज 10,000. ओके. मिस्टर राम क्या है? 10,000 रुपीज अनेबल है. मिस्टर समीर क्या करेंगे? मिस्टर समीर कोर्ट के पास जाके एक ऑर्डर इशू करेंगे नोन एज गार्निशी ऑर्डर. ओके. बट जब कोर्ट कोई भी एक गार्निशी ऑर्डर इशू करेगी, वो गार्निशी ऑर्डर इज ओनली फॉर मिस्टर राम. क्लियर? वो गार्निशी ऑर्डर मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम के जॉइंट अकाउंट पे अप्लाई नहीं होगी. ओके. बिकॉज Mr. Ram has only or alonely taken rupees 10,000. He is only liable to pay rupees 10,000 to Mr. Sameer. Mr. Shyam का उसमें कोई भी रोल नहीं है. So Mr. Shyam will not liable to pay 10,000. और दोनों का जो जॉइंट अकाउंट है उसमें से भी कोई भी 10,000 रुपीज माइनस नहीं होगा. वो 10,000 रुपीज मिस्टर राम के पर्सनल अकाउंट से पे किए जाए. क्लियर? समझ में आया? जॉइंट अकाउंट इज ओपन बाय 2 or more person jointly. Among them only one is a judgment debtor. यहाँ पे मिस्टर राम is a judgment debtor. Okay. Garnishee order cannot be applied on all the accounts holder. Okay. जितने भी सारे अकाउंट होल्डर है, भले वो 2 हो 3 हो, गार्निशी ऑर्डर सिर्फ जजमेंट डेटर पे ही अप्लाई की जाएगी. बाकी अकाउंट होल्डर पे गार्निशी ऑर्डर अप्लाई नहीं होगी. Clear? The second is partnership account. Partnership account is opened by 2 or many partners on the name of the firm or business. Okay? जिसे joint account open किया जाता है by 2 or more person. Same वैसे पार्टनरशिप अकाउंट भी ओपन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल XYZ एक कंपनी है और इस कंपनी के 4 पार्टनर्स है. ओके. 4 पार्टनर्स आर द अकाउंट होल्डर्स ऑफ दैट अकाउंट, और अकाउंट XYZ कंपनी के नाम पे ओपन किया जाएगा. द अकाउंट इज नोन एज अ पार्टनरशिप अकाउंट. ओके. इफ ओनली वन पार्टनर इज अ जजमेंट डेटर, देन ओनली हिज और हर इंडिविजुअल अकाउंट कैन बी अटैच्ड. ओके. जैसे हमने जॉइंट अकाउंट के केस में देखा, ओनली मिस्टर राम का इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट होगा, वही लायबल होगा, वही एप्लीकेबल होगा फॉर द गार्निशी ऑर्डर. सेम इन द केस ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, ओनली जो सिंगल पार्टनर है, जो जजमेंट डेटर है, वही एप्लीकेबल होगा टू पे द मनी. ओके. रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर पेइंग दैट मनी, और उनके ऊपर गार्निशी ऑर्डर अप्लाई नहीं किया जाएगा. ओके. बट इफ द लोन इज टेकन बाय पार्टनरशिप फर्म, अगर वो पूरी कंपनी ने, वो सारे पार्टनर्स ने मिलकर लोन लिया है, देन ऑल द पार्टनर्स आर लायबल. ओके. किसी एक पर्सन ने अगर लोन लिया है, वो अकेला पर्सन ही लायबल होगा,
उसका पर्सनल अकाउंट से अमाउंट माइनस की जाएगी। बट अगर पूरे कंपनी ने लोन लिया है, चारों पार्टनर्स ने मिलकर लोन लिया है, देन वो ऑल 4 पार्टनर्स आर लायबल टू पे ऑल दैट अमाउंट। ओके, द नेक्स्ट इज ट्रस्ट अकाउंट। ओके, जो ट्रस्ट होते हैं वो ट्रस्ट का एक ट्रस्टी होता है और वो ट्रस्टी ट्रस्ट अकाउंट ओपन करता है। ओके, अ ट्रस्ट अकाउंट इज ओपन बाय द ट्रस्टी। Trustee is a person who takes care the property of someone else for the benefit of beneficiary. Okay, if the trustee is a judgment debtor, trust account cannot be held liable. Okay, for example एक ट्रस्टी है, okay, और उसने ट्रस्ट अकाउंट ओपन किया है। okay, उसने एक ट्रस्ट अकाउंट ओपन किया है। ट्रस्ट इज सेपरेट एंड ट्रस्टी का एक अकाउंट सेपरेट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम पे एक ट्रस्ट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए ट्रस्टी ऑफ दैट ट्रस्ट। ओके, मेरा एक सिंगल अकाउंट सेपरेट अकाउंट भी ओपन किया जाएगा। ओके, इफ आई एम ए जजमेंट डेटर, मेरे पर्सनल अकाउंट से वो अमाउंट माइनस किया जाएगा। ट्रस्ट अकाउंट विल नॉट लायबल फॉर दैट गार्निशिंग ऑर्डर। क्लियर, समझ में आया? दिस 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट कैन ऑन दैट garnishee order can be served. The first is joint account, partnership account, the third is trust account. Okay, next the process of garnishee order. That process include the types of garnishee order. The first is order of nishi. The court direct the bank to stop the payment out of the account of judgment debtor. Such order is called order of nishi. Okay, see, well, जब कोई भी क्रेडिटर, और हमारे एग्जाम्पल में देखा मिस्टर समीर जब कोर्ट के पास जाएगा और रिक्वेस्ट करेगा टू इशू द गार्निशी ऑर्डर, फर्स्टली द कोर्ट डायरेक्ट, और कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर देगा बैंक को टू स्टॉप द पेमेंट। ओके, जब कोई भी कोर्ट बैंक को जो फर्स्ट ऑर्डर इशू किया जाएगा, दैट फर्स्ट ऑर्डर इज नोन एज अ ऑर्डर ऑफ निशी। ओके, जब फर्स्ट ऑर्डर दैट इज ऑर्डर ऑफ निशी इशू किया जाता है ऑन अगेंस्ट द बैंकर, बैंक के अगेंस्ट एक ऑर्डर इशू किया जाता है, उसके बाद बैंक के एक ऑफिसर को कोर्ट में जाना पड़ता है और उसको डेटर का जितना भी सारा बैंक के डिटेल्स है वो बैंक के डिटेल कोर्ट को सबमिट करने पड़ते हैं। ओके, आफ्टर द हियरिंग, जब हियरिंग कंप्लीट होता है, द स्टेटमेंट मेड बाय बैंकर इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्डर ऑफ निशी, द कोर्ट में इशू द फाइनल ऑर्डर। ओके, मैंने जैसे बोला जब ऑर्डर ऑफ निशी इशू होता है उसके बाद बैंकिंग ऑफिसर को, एक बैंकर को कोर्ट में जाना पड़ता है और वो डेटर से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन बैंक के पास है वो कोर्ट को बताएगा। आफ्टर दैट हियरिंग कोर्ट क्या करेगा, एक फाइनल स्टेटमेंट देगा, एक फाइनल ऑर्डर इशू करेगा और वो फाइनल ऑर्डर इज नोन एज अ ऑर्डर एब्सोल्यूट। ओके, जब कोई भी कोर्ट फर्स्ट ऑर्डर इशू करेगा दैट इज ऑर्डर ऑफ निशी। ओके, ऑर्डर ऑफ निशी के बाद बैंकर क्या करेगा, जो जजमेंट डेटर है उसके सारे डिटेल्स कोर्ट में दिखाएगा। ओके, कोर्ट में डिक्लेयर करेगा। आफ्टर दैट हियरिंग कोर्ट विल इशू द फाइनल ऑर्डर, दैट फाइनल ऑर्डर इज नोन एज अ ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट। क्लियर? नाउ द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ द गार्निशी ऑर्डर। द फर्स्ट, इफ द कोर्ट हैज ग्रांटेड द जजमेंट against the debtor and he and she fail to pay the money within the specified period of time, the creditor can apply to the court for the garnishing order. Okay, अगर एक स्पेसिफिक पीरियड में क्रेडिटर को पेमेंट नहीं मिला, creditor can go to the court and apply for the garnishing order. Okay, next, the application include an affidavit and the supporting documents such as proof of judgment should be attached. Okay, जब कोई भी क्रेडिटर अप्लाई करता है फॉर द जजमेंट फॉर द गार्निशी ऑर्डर, क्रेडिटर को क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, इंक्लूड एन एफिडेविट एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो एप्लीकेशन के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने में। ओके, अ क्रेडिटर मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच द गार्निशी रेसाइड्स। ओके, गार्निशी दैट मीन्स बैंक। ओके, जिस डिस्ट्रिक्ट में बैंक है उसी कोर्ट में अप्लाई करना कंपलसरी है। क्लियर? डेटर विल इशू विद द नोटिस स्पेसिफाई हिम और हर टू अपीयर बिफोर द कोर्ट
on the date, debtor will be issued with the notice specify him or her to appear before court on the date specified in the notice. Okay, creditor जो order issue करेगा, okay, क्रेडिटर के रिक्वेस्ट पे कोर्ट जो ऑर्डर इशू करेगा, ओके, उस रिक्वेस्ट वो उस ऑर्डर में लिखा होगा तो डेटर हैव टू प्रेजेंट, हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, दैट मीन्स डेटर को कोर्ट में आना है विद द बैंकर. ओके, जो हमने देखा ऑर्डर ऑफ निशी एंड ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट में, ऑर्डर ऑफ निशी जब बैंक पहले फर्स्ट ऑर्डर, जब कोर्ट फर्स्ट ऑर्डर देगा इट इज ऑर्डर ऑफ निशी, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर देगी, बैंकर एंड द डेटर हैव टू प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑन द स्पेसिफाइड डे. ओके, उसके बाद कोर्ट विल इंक्वायर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डेटर एंड मेक एन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट बाय गार्निशिंग. ओके, कोर्ट जब बैंक एंड कस्टमर और बैंक और डेटर जब कोर्ट में प्रेजेंट होगी, कोर्ट के सामने अपीयर होगी, उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, कंप्लीट इंक्वायरी करेगा ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट डेटर, और उसके बाद गार्निशी को, दैट मीन्स बैंक को ऑर्डर देगा टू मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर. ओके, द कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट द गार्निशी इंक्लूड द अमाउंट ऑफ डेट, कोर्ट कॉस्ट एंड द कमीशन. ओके, कोर्ट जो गार्निशी ऑर्डर इंक्लूड करेगा अगेंस्ट द बैंक, इसमें क्या लिखा होगा, कितना अमाउंट पे करना है, अमाउंट ऑफ डेट, कॉस्ट क्या है एंड द कमीशन क्या है. क्लियर, समझ में आया? दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द गार्निशी ऑर्डर. ओके, फर्स्ट में हमने क्या देखा, अगर क्रेडिटर को उसके पैसे नहीं मिले, क्रेडिटर कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर द गार्निशी ऑर्डर. ओके, उसके लिए सेकेंड पॉइंट, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा विद द एफिडेविट एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. ओके, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा या रिटर्न एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा बिटवीन द क्रेडिटर एंड डेटर कि डेटर ने उसके पैसे नहीं दिए. क्लियर, ये सारे प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स उसको लगाने पड़ेंगे विद द एप्लीकेशन. ओके, क्रेडिटर को कंपल्सरी डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में डेटर है, जिस डिस्ट्रिक्ट में डेटर्स की बैंक है, उसी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में अप्लाई करना है और एप्लीकेशन देना है. क्लियर. फोर्थ पॉइंट, डेटर विल बी, जिस दिन डेटर को नोटिस मिलेगी, जिस दिन कोर्ट ऑर्डर ऑफ निशी इशू करेगा, उसके बाद बैंकर के साथ गार्निशी, बैंकर दैट मीन्स गार्निशी को कस्टमर के साथ दैट इज डेटर के साथ कोर्ट में अपीयर होना है, कोर्ट में प्रेजेंट होना है. उसके बाद कोर्ट इंक्वायरी करेगा अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द डेटर, और उसके बाद गार्निशी को दैट मीन्स बैंक को ऑर्डर करेगा टू मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर. ओके, और वो ऑर्डर में क्या इंक्लूड होगा, अमाउंट ऑफ डेट, कितना अमाउंट देना है, कॉस्ट क्या है, मतलब जो कमीशन है, जो इंटरेस्ट है, वो सब कुछ वहां पे इंक्लूड किया जाए. क्लियर, दिस इज ऑन द प्रोसीजर ऑफ गार्निशी ऑर्डर. क्लियर, आई होप you all understand what is the meaning of garnishi order, definition, parties and the procedure. Okay, thank you.